पांचवी मंजिल बरोज मंगल सफ़ा नंबर 53। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसल्लि या रब्बि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वग़फिर लि या खैरल गाफिरीन फसल्लि या रब्बि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वग़फिर लि या खैरल गाफिरीन। اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خفي على خلقك ولم يعزب عنك فاستقلتك منه فأقلتني ثم عدت فيه فسترته علي فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أسقيت إليه بأذني أو نطقت به بلساني أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترت علي ثم سألتك الزيادة فلم تحرمني ثم جاهرتك بعد الزيادة فلم تفتحني فلا أزال مصرا على معصيتك ولا تزال عائدا بحلمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يوجب صغيره أليم عذابك ويحل كبيره شديد عقابك وفي إتيانه تعجيل نقمتك وفي الإصرار عليه زبال نعمتك. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي اللهم إني أستغفرك لكل ذنب لم يطلع عليه أحد سواك ولم يعلم به أحد غيرك مما لا ينجيني منه إلا عفوك ولا يسعه إلا مغفرتك وحلمك. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرم ويطيل السقم ويعجل الألم ويورث الندم. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب السماوات. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أنت أحق بمغفرتي إذ كنت أولى بستره فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم
اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه وليا من أوليائك مساعدة لأعدائك وميلا مع أهل معصيتك على أهل طاعتك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ألبسني كسرة انهماكي فيه ذلة وآيسني من وجود رحمتك أو كسر بي اليأس عن الرجوع إلى طاعتك لمعرفتي بعظيم جرمي وسوء ظني بنفسي فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أو نصر هلك لولا حلمك ورحمتك وأدخلني دار البوار لولا نعمتك وسلك في سبيل الغي لولا إرشادك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين. चौथी मंजिल पर रोज मंगल الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت الموازين وحمد الإيمان وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم نجني من النار واغفر لي مغفرة في الليل والنهار وعاطني المنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير من النار سالما وأن تدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما عمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع باسمي واسمي عامري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنبرني في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك درجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي قلبي وفي أهلي وفي مالي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك درجات العلى من الجنة آمين. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع أمري يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يسمه الواسمون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل
الجبال وميكائيل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء ولا أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره واجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيام يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك اللهم إني أسألك غنايا وغنى مولاي اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إني أستغفرك لذنبي واستهديك لمرشد أمري واستديرك من شر نفسي وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي اللهم فاجعل رغبتي إليك واجعل غنايا في صدري وبارك لي فيما رزقتني فتقبل مني إنك أنت ربي يا من أظهر الجميل وستر عليك القبيح يا من لا يؤاخذ بالجليلة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم السمح يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشفي خلقي بالنار اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم أحسن خلقي فأحسن خلقي ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب عني غيظ قلبي وأجلني من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم ارزقني طيبا واصنع مني طيبا اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك يا ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم जो इस तरह ने गाया वो इससे बाद में इनफरादी तौर पर पढ़ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद सुल्तानी मद्दसल्लाहु आली तशरीफ़ फरमा है। बिला ताख़ीर हज़रत को खिताब की दावत दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़े रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आवाज़ बुलंद बारगाह नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द सना अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू के लिए और करोड़ों हा दुरूद सलाम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी वजह से हमें रमज़ान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला और रहमान की पहचान नसीब हुई। समीर मुहतरम, आज जिस हम मौजू पर गुफ्तगू समाअत करेंगे वो क़यामत की निशानियाँ, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क़यामत का मतलब क्या है। आसान अल्फाज में हर मोमिन, हर मुसलमान का ये अकीदा है कि ये कायनात ख़त्म होगी, फना हो जाएगी। इदस समाउ फतरत, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, रुई की तरह उड़ने लग जाएंगे। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की धमक रोशनी मान पड़ जाएगी, चांद भी अपनी रानाइयों को खो देगा, सब फना हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठाएगा और फिर क़यामत, हिसाब व किताब और उसके बाद के मामलात होने हैं। ये सारे मामलात कि जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर दुनिया के इख्तिताम का, फना होने का वक्त करीब आएगा, उस कायम होने वाले दिन को क़यामत कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर क़यामत की होलनाकियां, क़यामत के मनासिर और क़यामत से डरने का हुक्म इरशाद फरमाया। सूरह हज की पहली आयत में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ए लोगो अल्लाह से डरो। और इसके बाद फरमाया, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बड़ी अजीम शय है। क़यामत का ज़लज़ला, क़यामत की होलनाकी कि जिसकी कैफियत रब ने यूं बयान फरमाई कि उस दिन दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को अपने गोद से गिरा देगी हैबत की वजह से, यहां तक कि हामिला औरतें जिनके पेटों में बच्चे होंगे उनके हमल जाया हो जाएंगे। ऐसा खौफनाक क़यामत का मंजर होगा। कुरान ने कहा, वमा अमरुस्साअति
इल्ला कलमहिल बसर, कयामत का मामला ऐसे है जैसे बस आंख झपकने की देर है, बस कयामत करीब है। कयामत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक की 2 उंगलियां उठाई, उन्हें जोड़कर फरमाया कि मैं और कयामत इस तरह है, यानी अब मेरे बाद कयामत है। इस बीच में ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, ना कोई नई शरीयत आएगी, ना कोई नया दीन आएगा, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत आमा नबुव्वत कयामत तक कायम रहेगी। अब सरकार के बाद कयामत है। समीन मोहतरम, हदीस तैयबा में, कुरान पाक में कयामत से कबल की कुछ निशानियां बयान की गई। इन्हें इशरातुस्साअह कहा जाता है, क़यामत की निशानियां। उनमें बड़ी बड़ी निशानियां भी हैं, जैसे सूरह कहफ के अंदर जब याजूज माजूज को एक दीवार के अंदर बंद कर दिया गया, तो कुरान की आयत आती है कि जब कयामत आएगी तो ये दीवार टूट जाएगी, तो याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल का निकलना, दाबतुल अर्द का निकलना, सूरज का मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होना, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से निशानियां हैं। इसी तरीके से हजरत महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तशरीफ लाना, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, दज्जाल के खिलाफ जिहाद करके उसे कत्ल करना, ये वो निशानियां हैं जो हमारे उमूमी दरसी कुतुब के अंदर हमारे यहाँ ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये कयामत की निशानियां हैं, और ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो क़याम कयामत से पहले, कयामत से पहले ज़ुहूर पजीर होंगी। समीन मोहतरम, इसके अलावा हदीस तैयबा में कई कयामत की निशानियां बयान की गई हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तैयबा है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब गनीमत को अपनी दौलत बना लिया जाए और अमानत को गनीमत और ज़कात को टैक्स बना लिया जाए, और फरमाया गैर दीन के लिए इल्म हासिल किया जाए, और आदमी अपनी बीवी की इताअत और मांग की नाफरमानी करे, अपने दोस्त को करीब बाप को दूर करे, मस्जिदों में ऊंची आवाजें हों, और कबीले का बदकार कौम की सरदारी करे, और कौम का जिम्मेदार इनका कमीना हो, और आदमी की ताजीम की जाए इसकी शरारत के खौफ से, और रंडियां बाजे जाहिर हो जाएं, शराबें पी जाएं, और इनके पिछले अगलों पर लानत करें। इस वक्त तुम सुर्ख हवा, जलजला, धंसना और सूरतें बदलना, पत्थर बरसने और इन निशानियों का इंतजार करना होगा जो लगातार होंगी, जैसे हार जिसका धागा तोड़ दिया जाए तो लगातार गिर जाता है। फरमाया इस तरह फिर तुम्हें इन चीजों का इंतजार करना होगा। इस हदीस तैयबा में ये कयामत की निशानियों में से चंद निशानियां बयान हुई। पहला फरमाया कि माले गनीमत को अपनी दौलत समझा जाए। माले गनीमत क्या है कि मुसलमान जब कुफ्फार से जिहाद करें और
उनसे जो माल हासिल हो उसे माले गनीमत कहा जाता है। अगर सुलह के साथ माल हासिल हो उसे माले फे कहा जाता है। तो माले गनीमत ये अल्लाह उसके रसूल का है और इसमें मुजाहिदीन का हिस्सा है, अल्लाह उसके रसूल का हिस्सा, गुरबा फुकरा मसाकीन का हिस्सा होता है। तो फरमाया जब इस माल को अपना माल समझा जाने लगे, अपनी दौलत समझी जाने लगे, और फिर फरमाया कि सिर्फ ये नहीं बल्कि अमानत को गनीमत समझा जाए। किसी ने किसी के पास कोई अमानत रखी तो उसे गनीमत समझे कि फरी का माल मिल गया है, खूब इससे नफा उठाओ, खूब इससे फायदा हासिल करो। और फरमाया ज़कात को टैक्स बना लिया जाए, ज़कात को टैक्स समझा जाए। आज हम माशरे में देखें, हमारे यहां वो माल जो अल्लाह उसके रसूल का है वो वक्फ की सूरत में हो, माल ज़कात की सूरत में हो, या हमारे यहाँ बैतुल माल का सिस्टम मौजूद है, ज़कात उशर का निज़ाम मौजूद है। आज हमारे यहाँ इस माल को अहले हवा, अहले हुक्म इसको अपना जाती माल समझते हैं, और न जाने ये कयामत की निशानियों में से है। इसके साथ साथ हम अपने मौजूदा सूरत हाल को भी देखेंगे कि देखिए हमारे यहाँ महकमा औकाफ मौजूद है, महकमा औकाफ के तहत कई खानकाहें मौजूद हैं, और हमें अहले सुन्नत वल जमा के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि अहले सुन्नत का पैसा, अहले सुन्नत का माल जो वक्फ के लिए होता है, आज वो पैसा हमारे चंद हुक्मरान या चंद ओहदेदारान उस हमारे पैसे से, हमारे मदारात से जमा किया हुआ पैसा, उससे नाच गाने की महफिलें सजाते हैं, शबाबो कबाब की महफिलें सजाई जाती हैं। वो माल जो वक्फ का माल है उसे जाती दौलत समझा जाता है, और अहले हुक्म जो उसके मुंतजिमीन इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत हाल यही है। फिर माले ज़कात का हिसाब ले लीजिए, हमारे यहां ज़कात बोर्ड मौजूद है, उसके अंदर जो बदउनवानियां हैं, उसके अंदर जो करप्शन का बाजार गर्म है, और फिर लोग आज ज़कात देने से कतराते हैं। आज माशरे में ज़कात को टैक्स समझा जाता है, जहां दीन दूरी की वजह से, जहालत की वजह से, लोग दीन से दूर होने की वजह से, मसाइल शरइया से नाबलद हैं, वहां लिबरल और रोशन ख्याली के नाम पर दीन के इस अहम फरीसे को टैक्स समझा जाता है। लोग देते हुए बोझल होते हैं और मजबूरी समझते हैं। इसी तरह अज़्ज़ा ने मन फिर फरमाया कि गैर दीन के लिए इल्म हासिल किया जाए। इल्म का हुसूल दीन की खिदमत नहीं बल्कि कुछ और हो। इल्म इसलिए पढ़ा जाए, इसलिए सीखा जाए कि दुनिया का मकसद जोहला से, बाहिस मुबाहिस से, उलमा से मुनाजरे, मुजाहिदे और अपने आप को आलिम कहलवाना या दुनियावी मकसूद, लालच, हिर्स, दुनिया का माल मकसूद हो, तो फरमाया जब ये होने लग जाए कि लोग इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए हासिल करें। आज हम देख लीजिए हमारे यहाँ इल्म दीन के लिए कितना हासिल किया जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए कितना दीन सीखा सिखाया जाता है,
और दुनियावी मकसद, दुनियावी मफाद किस कदर गालिब होता है। आज हमारे यहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है सिर्फ इसलिए कि दुनिया के अंदर अच्छी नौकरी कर लेंगे, अच्छे कारोबारी बन जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये नहीं कि रिज़्क़ हलाल कमाएगा, ये मकसद नहीं होता कि वो दीन की खिदमत करेगा या दीन के बारे में आगाही हासिल करेगा, इल्ला माशाअल्लाह। फिर इरशाद फरमाया कि आदमी अपनी बीवी की इताअत करे और मां की नाफरमानी करे। जब ऐसा होने लग जाए, आज आप सारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते होंगे। वालिदा बोले बेटा ये काम कर दो, टक से जवाब मेरे से नहीं होता, मैं ये कर रहा हूं, मुझसे नहीं होगा। तो ये भी वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन का हुक्म मानना ये वाजिब है, इल्ला ये कि कोई बुराई का हुक्म दे तो वहां नहीं माना जाएगा, वरना माँ बाप जो हुक्म दें वो मानना लाजिम है। आप माशाअल्लाह एतकाफ में हैं, दीन की तरफ रग़बत है, दीनी माहौल से वाबस्ता है, मगर कितने हम में से भी ऐसे होंगे कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करते होंगे। तो ये क़यामत की निशानी है कि मां की नाफरमानी, अपनी बीवी की इताअत जो अमली जिंदगी में आएंगे। आज जो माँ बाप की नहीं मानते, जब अमली जिंदगी में आएंगे तब कहां माँ बाप की मानेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की इताअत कीजिए, उनका हर हुक्म मानिए, उनकी बात के सामने सरनुगू हो जाइए, जो वो कहें कभी इनकार मत कीजिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपनी बंदगी के बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। ये रब ने ये फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ क्या करो, अच्छा सलूक करो। क्या करो, फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कहो। क्या नहीं कहो, यानी कोई बात ना गवा लगे, उफ ये अम्मा क्या कर रही हैं आप, ये अबू आप क्या कह रहे हैं, यानी इस तरह का लहजा, उफ हल्का सा नाराजगी का इजहार, नाखुशी का इजहार नहीं करना। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने दोस्त के करीब और बाप को दूर करे। अपने वालिद के पास बैठकर बात करने के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 24 घंटे अगर रात के 2 बजे भी दोस्त बोले चल खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, भागा भागा जाएगा और अपने वालिद उससे दूर दूर रहेगा, उसे दूर भागेगा। फरमाया दोस्त के करीब और बाप से दूर हो, यह भी कयामत की निशानी है। आज हम दोस्तों को ज्यादा तरजीह देते हैं, अपने वालिदैन की बातों को तरजीह नहीं देते। वालिदैन अगर मना करें फलां बंदे के साथ नहीं उठो बैठो, उसका किरदार ठीक नहीं, हम वालिदैन की नहीं मानेंगे, दोस्त की मानेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये कयामत की निशानी है कि बंदा दोस्त के करीब और बाप से दूर हो। सबसे हमारा हमदर्द, सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा हमारे नफे नुकसान की सोच रखने वाला वो हमारे वालिदैन हैं। सबसे ज्यादा बिला लौस हमसे मोहब्बत रखने वाले, हमारी भलाई चाहने वाले, हमारी अच्छाई, हमारी फिक्र करने वाले हमारे वालिदैन होते हैं। मगर आज का नौजवान माँ बाप की बजाय दोस्तों को तरजीह देता है। फिर इरशाद फरमाया कि मस्जिदों में आवाजें ऊंची हों, लोग मस्जिदों में चिल्ला चिल्ला कर दुनिया की बातें करें, लोग मस्जिदों में लड़ें झगड़े चिल्लाएं,
और दुनियावी गुफ्तगू हो, ये भी क़यामत की निशानी। और फिर फरमाया कि कबीले का बदकार कौम की सरदारी करे, जो सबसे ज्यादा बदकार बुरा हो उसे सरदार बना दिया जाए, उसे लाकर सर पर बिठा दिया जाए। आज हमारे माशरे में क्या ऐसा नहीं है कि हमारे यहां हमारे सरदार, हमारे फैसला करने वाले, हमारे अहले हुक्मरां, अहले हुकूमत, हमारे मनसब रखने वाले लोग इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है कि जो जितना करप्ट, जितना बड़ा गलत रास्ते पर होगा उसे उतने बड़े ओहदे पर नवाज दिया जाएगा। तो कौम के बदकार शख्स लोग जब कौम के सरदार बन जाएं, और फिर फरमाया कि कौम का जिम्मेदार इनका कमीना शख्स हो, जितना बड़ा कमीना होगा उतना उसको सरदार और जिम्मेदारी दे दी जाए। आज हमारे माशरे में ये भी आम है कि सही सुलझा हुआ अमानतदार नेक सिरत उसका इंतखाब नहीं किया जाता, बल्कि करप्ट, कमीना, शरारती, बागी, दीन बेजार, दीन से नफरत करने वाला शख्स, उसे लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हें तरजीह दी जाती है। तो कमीने लोग कौम के जिम्मेदार हो गए, और जब कमीने लोग कौम के जिम्मेदार बनेंगे तो फिर वही होगा जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहां अल्लाह उसके रसूल की दीन की बात करने वालों को तो गोलियां मारी जाती हैं और बुत परस्तों को इज्जतों से नवाजा जाता है। फिर इरशाद फरमाया कि लोग उसकी ताजीम करेंगे उसके शरारत के खौफ की वजह से, इसलिए उसकी तकरीब करेंगे, यार इसकी इज्जत नहीं की तो ये नुकसान पहुंचाएगा, ये जलील करेगा, ये जान में नुकसान पहुंचा सकता है, माल के अंदर, इज्जत के अंदर। तो फरमाया इस वजह से लोगों की इज्जत की जाती होगी, इन कमीने शख्सों की। जैसे हमारे यहां इलाके का बदमाश, हर बंदा उसकी इज्जत करता है सिर्फ इसलिए कि यार कि इसकी शरारत का हमें नुकसान ना हो। और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि इरशाद फरमाया कि शराबें पी जाएं और पेशावर गुनाह करने वाले लोग और बाजे जाहिर हो जाए, आम गुनाहों, बदतरीन गुनाह आम हो जाए और बाजे जाहिर हो जाए, म्यूजिक के आलात आम हो जाएं। आज हम देखें कि माशरे के अंदर ये नासूर फैलता जा रहा है, गुनाह आसान, निकाह मुश्किल होता जा रहा है। निकाह के लिए हमें लाखों जरूरत और गुनाह के लिए हमें महज चंद सौ रुपए काफी। तो ये कयामत की निशानी है कि पेशावर गुनाह करने वाली खवातीन ज्यादा हो जाएं। आज इस माशरे का अलमिया है कि हमारे यहां बेहुदा फहाश किस्म के लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता है, उन्हें कौमी अवार्ड से नवाजा जाता है। जितना फाहिशा, जितना बेहयाई का काम करने वाली औरतें होंगी उन्हें कौमी इनामात से नवाजा जाता है। बाजे आम हो गए, इतने आम हो गए कि आज हमारे माशरे में एक मुकद्दस पेशा, एक मुकद्दस फरीजा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ नात की सूरत में करना। हम दिगर मामलात को तो साइड पे रखें, गाने बजाने वाले मरासी किस्म के लोग वो तो बेहूदगी करते ही करते हैं। आज दीन के नाम पर ये चीज आम हो गई। म्यूजिक वाली नातें, डिस्को किस्म की गानों की तर्जों पर और गाने के अंदाज में आज ये इस कौम का अलमिया हो गया है कि ये बाजे, ये म्यूजिक के आलात, मज़ामीर हमारी दीनी फील्ड में इन्हें दीन का हिस्सा समझकर अपनाया जा रहा है। ये इस कौम की हालत हो चुकी है। ये कयामत की निशानियां हैं कि जब बाजे जाहिर हो जाएं। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं अपने आप को सनाखाने मुस्तफा कहते हैं,
मगर उनका अंदाज, उनका पढ़ने का लहजा म्यूजिक के साथ, गानों की तर्जों पर, गाने बज रहे हैं पीछे, म्यूजिक बज रहा है, बाजे बजाए जा रहे, ये इस कौम की कयामत की निशानियों में से है। और फिर सरकार आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शराबें पी जाएं, शराब आम हो जाए और इसके पिछले अगले लोगों पर लानत करें। आज कितने ऐसे बाजारी किस्म के लोग हैं जो हमारे मुज्तहिदीन पर, उलमाए उम्मत पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर, औलियाए कामिलीन पर अपनी ज़बानें दराज करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। हमारे आज इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसे कई बदकार किस्म के, बाजारी किस्म के लोग मौजूद हैं कि जो हमारे असलाफ पर, हमारे बुजुर्गान दीन पर लानतान करते हैं। फरमाया जब ये सूरतें हो जाएं तो फिर हुजूर ने फरमाया उस वक्त सुर्ख हवा, जलजले, जमीन में दसना, सूरतें बदलना, पत्थर बरसना और इन निशानियों का इंतजार करना होगा जो लगातार होगी। आज हमारे यहां जलजले, कहत साली, आज हमारे यहां माली मुश्किलात, आज उम्मत की ये परेशान कुन हालत कि हर जगह मुसलमान को काटा जा रहा है, ज़बाह किया जा रहा है, हर जगह मुसलमान का खून जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है और मुसलमान के खून की कीमत पानी से भी कमतर हो गई है। ये इस वजह से है कि माशरे में ये बुराइयां आम होती जा रही हैं। हुजूर ने फरमाया फिर जमीन में दसना और ये पत्थर बरसना, सूरतें बदलना, इन आज़ाबात का इंतजार करो। इस तरह जिस तरह एक हार हो, जब उसको तोड़ा जाए उस पर लगे मोती यक बार एक एक करके जमीन पर गिरने लग जाते हैं। फरमाया इस तरह फिर ये निशानियां लगातार जाहिर होंगी। समीन मोहतरम, आज हम गौर करें, आज हम गौर करें कि हमारे माशरे में क्या कुछ नहीं हो रहा। ये कयामत की निशानियां हैं। माँ बाप की नाफरमानी आम है, इताअत ज़ौजा की जाती है। माँ बाप को आज इस माशरे का ये अलमिया हो गया है कि एक मुस्लिम माशरा, एक इस्लाम के नाम पर बनाए गए मुल्क में ओल्ड हाउसेस कायम किए जा रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, वो माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस सेट करके दिया, अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं उसके पास माँ बाप की खिदमत का वक्त नहीं, उठा के ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं या घर में मेड रख लेते हैं जो 24 घंटे उनकी देखभाल करती है और उस औलाद को माँ बाप का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं होती। आज हमारे माशरे में ये आम हो गया है। तो ये कयामत की निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, फिक्र करो, आज हमने ये अहद करना है कि हम उन लोगों में से नहीं होंगे कि जो इन खामियों से, इन बुराइयों से मुत्तसिफ होते हैं, बल्कि हम अपने आप को अच्छाई से मुत्तसिफ करेंगे। हम माँ बाप का हुक्म मानेंगे, इताअत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह का हक भी अदा करेंगे, अल्लाह के अहकामात को भी बजा लाएंगे और इन चीजों से, बेहयाई से, बुराई से, बुरी बातों से, फहश गोई से, बदकलामी से, गाली गलोच से, लड़ाई झगड़े से खुद को दूर करेंगे, अपने अखलाक के अंदर अच्छाई पैदा करेंगे। समीन मोहतरम, एक और हदीस तैयबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी है। तवज्जो, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। सहाबा बैठे हुए हैं, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। इतने में एक देहाती शख्स आते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मतस्साअ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब कायम होगी? हुजूर ने फरमाया कि जब अमानत जाया की जाए तो कयामत का इंतजार करो।
जब अमानत को जाया किया जाने लगे, फरमाया फिर कयामत का इंतजार करो। क़ाल कैफ़ अदाअतुहा, उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत को कैसे जाया किया जाएगा, अमानत को कैसे बर्बाद किया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िरुस साआ, फरमाया जब मामला गैर अहल के सुपुर्द कर दिया जाए फिर कयामत का इंतजार करो। जब गैर अहल को मनसब पर बिठा दिया जाए, मामलात उसके सुपुर्द कर दिए जाएं, फरमाया फिर कयामत का इंतजार करो। आज हम देखें अमानत का मफहूम बड़ा वसी है, बड़ा वसी मफहूम है। अमानत जाया की जाए। आज हम देखें कि हमारे यहां गैर अहल को किस तरह मनासिब पर बिठाया जाता है। हम दुनियावी मामलात को एक साइड पे रख दें, सिर्फ हम अपने आज इस माशरे की जो हालत है, आज हमारे इस माशरे की जो बर्बादी के असबाब हैं, उनका एक सबब यह भी है कि नाअहल लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, नाअहल लोग हमारे कायद बन जाते हैं, हमारे मुक्तदा बन जाते हैं, हमारे पेशवा बन जाते हैं, हमारे रूहानी पेशवा बन जाते हैं। जो नाअहल होते हैं, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि उसका मफहूम यह है कि जब शाहीनों के घोंसलों में जाग कव्वे अंडे देने लग जाएं और कव्वे कब्जा कर लें तो फिर दीन का बेड़ा गर्क होता है। आज हमारे यहां देख लीजिए माजरत के साथ कि हमारे यहां बड़े बड़े गद्दी नशीन जो औलिया के जान नशीन कहलवाते हैं, दीन से दूर दीन दुश्मन बन गए, कि जो कुत्ते लड़ाने वाले, कबूतरबाजियां करने वाले, मुर्गे लड़ाने वाले, घोड़े लगाने वाले, बंदर नचाने वाले, आज ऐसे ऐसे हमारे यहां बड़े बड़े पीर बने फिरे हैं। हम उन्हें अपना मुक्तदा बनाए बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो गैर अहल है, अहलियत नहीं। हमारे यहां ये गद्दी नशीनी का तसव्वुर जो है, इस्लाम में गद्दी नशीनी का तसव्वुर नहीं, अहलियत का तसव्वुर है। ये एक अलग टॉपिक है कि इस्लाम में मायार क्या है, काबिलियत है, गद्दी नशीनी नहीं है। जो अहल होगा वो मनसब पर फाइज होगा। तो आज हमारे माशरे का एक बर्बादी का सबब यह है कि जहां से हमें रूहानी तरबियत मुयस्सर होनी थी, जहां से हमें रूहानी फयूज व बरकात मिलने थे, वहां भी बदनुमा किस्म के लुटेरे और लिबास खिजरी में रहजन बैठे हैं, जो हमारे अकीदों के भी मुहाफिज नहीं हैं, हमारे ईमानों के भी मुहाफिज नहीं हैं। और आलमिया यह है कि अकीदे भी हमारे वो बर्बाद कर रहे हैं। हमारे यहां दीन बेजार भी लोग पैदा कर रहे हैं और अहले सुन्नत का माल भी हड़प किए जा रहे हैं। लाखों अरबों करोड़ों रुपया ये अहल लोग खा रहे हैं, जो अहले सुन्नत की भोली भाली अवाम को नजराने के नाम पर, चंदे के नाम पर लूट कर खा गए, कि जिनके अपने बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, ना दीन का पता, ना दीन की समझ, ना दीन के लिए उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं। यह भी कयामत की निशानी है कि गैर अहल को मनासिब अता किए गए, और जब गैर अहल लोग मनसबों पर फाइज हुए, चाहे वो दीनी मनासिब हो या दुनियावी मफासिद हो, मनासिब हो, चाहे वो मजहबी ओहदे हो या वो हुकूमती ओहदे हो, जब इंतहाई घटिया किस्म के लोग ओहदों पर आते हैं तो दीन का बेड़ा गर्क होता है। और फिर जिन लोगों को दुआए कुनूत नहीं आती, वो भी कहते हैं कि हम दीन ज्यादा जानते हैं। जिन्हें सूरह इखलास तक नहीं आती, वो भी कहते हैं कि हम दीन उलमा से ज्यादा जानने वाले हैं। ये कयामत की निशानी है कि गैर अहल लोग मनासिब पर फाइज होंगे। जब गैर अहल लोग, मफाद प्रस्त लोग, करप्ट लोग ओहदों पर आते हैं तो कौम का बेड़ा गर्क होता है। और यह कयामत की निशानियों में से है। समीन मोहतरम, एक और हदीस तैयबा कयामत की निशानियों में से सुनिए
आप नौजवान बच्चे हैं, तौलबा हैं, आपके लिए खुसूसी हदीस तैयबा है। बड़े गौर से सुनिएगा। आज इल्म का चराग बुझ रहा है, उलमा उठ रहे हैं, नौज़ायदा उलमा जो बन रहे हैं, इल्म की तिश्नगी, इल्म की प्यास से वो आरी नजर आते हैं। बस सिर्फ सरसरी तौर पर या तो साल पूरे किए जाते हैं या सिर्फ किताबों से गुजर कर चला जाता है बंदा। सुनिए, ये आप तौलबा के लिए बड़ी तवज्जो से ये हदीस सुनिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना मिन इशरातिस साअती, कि कयामत की निशानियों में से यह है। सरकार ने कयामत की निशानी बयान फरमाया, इल्म उठ जाएगा। क्या फरमाया? इल्म उठ जाएगा और जहल ज्यादा हो जाएगा, कसीर हो जाएगा। इल्म खत्म हो जाएगा और जहालत ज्यादा हो जाएगी। इल्म उठ जाएगा। आज माशरे में देखिए, इल्म कम है, उलमा रासिख कम रह गए, जहालत ज्यादा होगी। आज हर बंदा अपने आप को मुफ्ती से नीचे समझता ही नहीं। हर बंदा, आम सा बंदा, वो भी दीन के बारे में अपनी राय जनी कर रहा होता है। और इस पर अलमिया ये देखिए कि आज हमारे माशरे में दीन सिखाने वाले, खुसूसन हमारी मीडिया की जिन्नत देखिए। वो लोग जो सारा साल गाने बजाते हैं, फिल्में ड्रामे बनाते हैं, वो लोग जो बेहुदा किस्म के, बाजारी किस्म के लोग हैं, आजकल वो रमजान में टीवियों पर बैठकर लोगों को रोजे और दीन के मसाइल सिखा रहे होते हैं। जिनकी जहालत का आलम यह है कि जिन्हें कुरान के हलाल और हराम का भी इल्म नहीं होता। ये जहालत की कसरत है। बज़ाहिर हम देखें, प्यारे बच्चों, जरा ये बात बड़ी गौर से समझिएगा। बज़ाहिर हम देखें, मदारिस ज्यादा हैं, उलमा की तादाद जाहिरन ज्यादा है, हुफ़ाज़ बहुत ज्यादा हैं, मगर ये कयामत की निशानियां, इल्म उठ जाएगा, कम हो जाएगा, जहल कसीर हो जाएगा, जहालत की कसरत होगी। इसकी वजह क्या है कि इल्म और है, मालूमात और है। हम किताबें पढ़ लेते हैं, ये सिर्फ मालूमात है। इल्म हुवा हुसूल सूरत शै फिल अक़ल, किसी शय का अकल में आना, रासिख हो जाना, ये एक कैफियत है। इल्म और शय है। हम किताबें पढ़ लें तो ये मालूमात है, इल्म किसी और शय का नाम है। तो हमारे यहां बज़ाहिर देखा जाए, मदरसे ज्यादा, हुफ़ाज़ ज्यादा, उलमा की लिस्ट फारिग होने वाले मदारिस से तौलबा की तादाद ज्यादा, लेकिन इल्म नहीं है। आलिम कहलवाते तो हैं, अल्लामा बन तो जाते हैं, मुफ्ती बन तो जाते हैं, मगर इल्म की दौलत नहीं होती। तफक्कुह फिद्दीन जिसका नाम है, हम उससे आज आरी हैं। तो ये कयामत की निशानी है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत ज्यादा होगी। और फिर फरमाया कि जिना ज्यादा हो जाएगा, शराब नोशी ज्यादा हो जाएगी। और फरमाया मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, यहां तक कि एक मर्द की कफालत में 50 औरतें हो जाएंगी। ये कयामत की निशानियों में से। औरतों की तादाद बढ़ेगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आओ, आप में से बहुत सारे बच्चे हिफ्ज में होंगे, मदरसे में पढ़ रहे हैं, दरसे निजामी पढ़ रहे हैं, तो आओ इस तरफ तवज्जो करो कि इंशाअल्लाह ताला हम आलिम दीन बनेंगे, सही आलिम दीन बनेंगे। सिर्फ किताबें पढ़कर गुजर कर सरसरी तौर पर यह करना कि मैंने दरसे निजामी कर ली, सादत के तौर पर नहीं। इल्म को हासिल करो। इल्म उस रोशनी का नाम है जो दिल में चराग की मादिद रोशन होती है और अपने नूर से आलम को रोशन करती है, जिसकी नूर की किरणों से अंधेरों में रोशनियां और चराग उभरते हैं। तो आज उलमा की तादाद कम हो रही है। बज़ाहिर देखें तो आलिम कहलवाने वाले ज्यादा हैं, मगर इल्म वाले
जो वाक़यातन अहले इल्म हो। हमारे बुजुर्ग हस्तियां कितनी हमसे जुदा हो रही, बड़े बड़े उलमा इकराम दुनिया से जा रहे हैं, बाकी सिर्फ जो है वो गुबारे में हवा की मानित अहले इल्म रहते जा रहे हैं। जो रासिख फिल इल्म थे वो उठते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक और हदीस तैयबा बड़ी तवज्जो से ये सुनिएगा, शायद आपने ये हदीस कभी पहले सुनी हो। ये हदीस तैयबा इब्ने माजा शरीफ के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर, इमाम हाकिम ने इसको, तिबरानी ने इसको, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में इस हदीस को नकल किया गया, और अहादीस की कुतुब जो हैं उनके अंदर इस हदीस को नकल किया गया। बड़ी तवज्जो से ये हदीस सुनिएगा, बड़े गौर से। आप लोगों के लिए और जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन सब की बारगाह में ये अर्ज है कि इस हदीस को गौर से सुनिएगा। हदीस तैयबा है, हजरत ज़ियाद बिन लबीद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी चीज का जिक्र किया गया। अब शारिहीन ने हदीस जिक्र फरमाते हैं कि कयामत का जिक्र किया गया, लेकिन इस हदीस में अल्फाज नहीं है बदिगर रिवायत के हवाले से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी चीज का जिक्र किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इस वक्त होगा जब इल्म चला जाएगा, इल्म उठ जाएगा, इल्म खत्म हो जाएगा, इल्म नहीं रहेगा। कुल तो फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कैफ यذهबुल इल्म व नहनु नक़रउल कुरान। कहते मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म कैसे चला जाएगा, हम कुरान पढ़ते हैं, व नुक़रिउहु अबनाअना, और ये कुरान हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इधर तवज्जो तवज्जो। कहने लगे या रसूल अल्लाह इल्म कैसे खत्म हो जाएगा, कुरान हम पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे आगे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। तो कुरान पढ़ाएंगे हम, जब बच्चे हमारे कुरान पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, कुरान तो कयामत तक बाकी रहेगा ना, कुरान तो कयामत तक बाकी है ना। तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म कैसे खत्म हो जाएगा, कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है, दीन बाकी है, तो हम कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इल्म कैसे उठ जाएगा, इल्म कैसे चला जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए ज़ियाद तेरी मां तुझ पर रोए। ये हुजूर ने मोहब्बत के अंदर इरशाद फरमाया मैं तो ये देखता था कि तू मदीने के समझदार लोगों में ज्यादा समझदार है। हुजूर ने फरमाया अवलैस हाज़िहिल यहूद वन नसारा यक़रऊन अत-तौरात वल इंजील ला यअलमून बिशैइन मिम्मा फीहिमा। फरमाया ए ज़ियाद बताओ क्या ये यहूद और नसारा क्या ये तौरात और इंजील नहीं पढ़ते? पढ़ते। फरमाया लेकिन ला यअलमून बिशैइन मिम्मा फीहिमा, तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह के जो अहकामात, जो हलाल और हराम, दीन के मसाइल अहकाम को बयान किया था, पढ़ते तो हैं मगर जानते कुछ नहीं। ला यअलमूना, कुछ भी नहीं जानते, तो पढ़ते हैं। आज हम देखें हमारे यहां, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हाफिज कुरान बहुत मिलेंगे, आलिम कहलवाने वाले बहुत मिलेंगे, हर बंदा नाजरा कुरान पढ़ने वाला, हर गली में मदरसा, हर जगह कुरान की तालीम आम हो रही है, मगर कुरान में क्या है बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, जाहिरी तौर पर कुरान पढ़ा बहुत जाता है, मगर इल्म कम है। वजह क्या है कि हमने कुरान को सिर्फ मुतबर्रिक किताब समझ लिया, सिर्फ नाजरा पढ़ लिया, समझते हैं काफी। कुरान के हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम समझना, इसके अहकाम शरइया को जानना, ये उम्मत की एक कसीर तादाद इससे गाफिल है। आज हमारे यहां बरकत के लिए घर में कुरान रख लेंगे, कभी कुरान को खोल के नहीं पढ़ेंगे,
घर में कोई परेशानी है, किसी के पास जाए, किसी आमिल ने बता दिया कि भाई 2 कुरान ला के मस्जिद में रख दो, ला के मस्जिदों में कुरान रख दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर कहा जाए घर में कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, ये काम नहीं होगा। आज हमारी मस्जिदों में इतने कुरान पढ़े होते हैं, नए कुरान होते हैं, जिन्हें पढ़े पढ़े सालों गुजर जाते हैं, मगर कोई उनकी तिलावत करने वाला मौजूद नहीं होता, कभी किसी ने खोल के भी नहीं देखा होता। ये कयामत की निशानियां हैं। आज हम कुरान पढ़ते हैं, मगर कुरान के अंदर है क्या वो हमें पता नहीं। कभी जिंदगी में हमारे मुसलमान भाई ये जहमत नहीं करते कि आए तो सही, हम कुरान खोल के पढ़ें तो सही, हमारा रब हमें क्या फरमाता है, हमारा रब हमें क्या इरशाद फरमाता है। ऐसा है या नहीं? आज जाहिरी तौर पर कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है, मगर कुरान के अंदर क्या है वो हमारे मालूम नहीं होता। ये सिर्फ अहले इल्म हजरात जो अपना ओढ़ना बिछाना इल्म को जीनत बनाते हैं, जिनका सुबह शाम काम ही इल्म की तहसील है, इल्म की दौलत से अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता करना है, समीने मुहतरम वो बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो ये कयामत की निशानी है। सिर्फ कुरान पढ़ना नाजरा काफी नहीं है, सिर्फ कुरान हिफ्ज कर लेना काफी नहीं है। हिफ्ज कर लिया, अलिफ लाम मिम से शुरू किया, वन नास तक खत्म कर दिया, पता ही नहीं है क्या पढ़ा, क्या अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने किन चीजों का हुक्म दिया, किन बातों से मना फरमाया, किन कामों के बारे में रब ने हुक्म दिया कि ये काम करो और किन से मना किया, वो पता ही नहीं। आज हम देख लें कि हमारे यहां कुरान ने पाक से किस कदर हिदायत ली जाती है। कुरान का पढ़ना इबादत, देखना इबादत, छूना इबादत, चूमना इबादत, उसकी जियारत इबादत, उसका रखना बरकत। मगर कुरान के नुज़ूल का यह मकसद नहीं है कि सिर्फ बरकत के लिए घर में रखा जाए, बल्कि फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए क्या है, हिदायत है, हिदायत का जरिया है, रहबरी का जरिया है, एक कानून है, एक आइन है, जिंदगी गुजारने के उसूल इसमें बयान किए गए। तो ये कब होगा? जब हम खुद को कुरान से करीब करेंगे, हम कुरान के उलूम से आगाही हासिल करेंगे। और ये कब मुमकिन होगा? जब हम सही आलिम दीन बनेंगे, जब हम इल्म दीन हासिल करेंगे, जब हम दीन सीखेंगे, कुरान समझेंगे, कुरान के हलाल को हलाल जानेंगे, उसके हराम करदा अशिया को हराम समझेंगे, कुरान के अहकाम पर अमल करेंगे, और अल्लाह ने जो प्यारे अलकाबात से हमें फरमाया है हम उन पर अमल पैरा होंगे, तब ये कुरान हमारे लिए हिदायत बनेगा, कुरान से रहनुमाई लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कयामत की निशानियां हैं। कुरान पढ़ा ज्यादा जाता है, समझा नहीं जाता, समझने वाले बहुत कम हैं। तो आप लोग खुश नसीब हो, खुश नसीब हो। आपके कितने दोस्त ऐसे होंगे जो गली कुचू में अभी भी खेल रहे होंगे, रात को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दिन में सोते होंगे, नमाजों की फिक्र नहीं होगी। तो आप खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व ताला के फजल और करम और प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से तुम्हें माह रमदान के ये आखिरी अशरे में ये मुबारक लम्हात अल्लाह की इबादत में सर्फ करने को मिल रहे हैं। और ये इल्म की महफिल सजी है ना, इसकी बड़ी बरकतें हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है। हदीस तैयबा मुस्लिम शरीफ के अंदर है, तवील हदीस तैयबा है, उसका आखिरी हिस्सा है कि जब भी कोई कौम अल्लाह के घर में से किसी घर में बैठकर तिलावत कुरान करती है, आपस में दर्स व तदरीस करती है, यतदारसूना बैनहुम, आपस में दीन सीखने सिखाने की बातें होती हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें फरमाई। नुज़िलत अलैहिमुस सकीना, उन पर क्या होता है? सुकून नाजिल होता है। क्या होता है? गशियतहुमुर रहमा, रहमत ढांप लेती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते अपने परों से उन लोगों को ढांप लेते हैं। और फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उन बंदों का जिक्र अपने पास फरमाता है।
ये इन महफिलों की बरकत है कि यहां आप लोग बैठे हैं तो ये कोई मामूली सादत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला हम कुरान से अपना रब्त, अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। हम सिर्फ नाजरा नहीं करेंगे, जो नाजरा पढ़ रहे हैं वो हाफिज कुरान बनेंगे, और जो हाफिज कुरान है वो इंशाअल्लाह सही आलिम कुरान बनेंगे। वो कुरान को समझेंगे, कुरान को सीखेंगे और कुरान से हिदायत पाकर दूसरों के लिए जरिया निजात बनेंगे। आज उम्मत ने जब कुरान को छोड़ दिया तो ये कयामत की निशानियां हैं, इल्म खत्म हो गया। इसलिए हमें गौर करना चाहिए, अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और ये जो कयामत की निशानियां हैं, बहुत करीब है कयामत, बहुत करीब है कयामत। इसलिए हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए, फितनों से बचना भी चाहिए, अपने अकीदों की इस्लाह भी करनी चाहिए, और बदमज़हब, बदअकीदा, बेदीन लोगों से अपने ईमानों की हिफाजत भी करनी चाहिए। ये भी कयामत की निशानियां हैं। हदीस तैयबा में आया कि लोग ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुनी होंगी। तो आज ये कयामत की निशानियां हैं कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कई ऐसे नाम निहाद अपने आप को आलिम कहलवाने वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें कुरान की तिलावत भी सही करना नहीं आता, सही तरह से कुरान भी पढ़ना नहीं आता, और जिन्हें बस वो मीडिया की जीनत बन गए तो बड़े बड़े आलिम कहलवाने लग गए। याद रखिए, ये जाहिरी सूरत, शक्ल और सूरत ये इल्म की निशानी नहीं है, बल्कि इल्म उस सीने के अंदर नूर का नाम है जो जब सीने में चिराग जल जाता है तो उसकी रोशनी से, उसकी किरणों से प्यासे अपनी प्यास बुझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप खुश नसीब हैं, इसलिए इस अपनी खुश नसीबी को जाया मत कीजिए। इल्म दीन अल्लाह की रिजा के लिए हासिल कीजिए और सही आलिम दीन बनिए, सही उल अकीदा, रासिख फिल अकीदा, पुख्ता आलिम दीन बनिए। आज आप मेहनत करेंगे, कल कौम के आप मामार होंगे। कौम की रहबरी, कौम की रहनुमाई आप लोगों के हाथों में होगी। और आज जब हम इल्म नहीं पढ़ेंगे, दीन से दूर रहेंगे, ये हदीस तैयबा का मफहूम है। फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, उलमा उठ जाएंगे, इल्म ऐसे उठेगा कि अहले इल्म उठ जाएंगे। फरमाया कयामत की निशानी है कि दो बंदे आपस के मामलात में झगड़ेंगे, कोई तीसरा उन्हें शरीयत मुताहरा के मुताबिक उनके मामले का फैसला करने वाला नहीं मिलेगा। यह कयामत की निशानी है। बाबुल वरासत में, वरासत के इल्म की फजीलत में भी इस तरह की एक रिवायत मिलती है कि इसे इल्म फराइज कहा जाता है। तो ये कयामत की निशानियों में से है कि इल्म उठता जा रहा है। इल्म कैसे उठ रहा है? हमारे पास बड़े बड़े उलमा जो इल्म के पहाड़ थे, आज वो हम में नहीं रहे। जिनके इल्म पर हमें नाज था, जिनकी फकाहत पर, मगर आज वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो अब इसलिए हमें कयामत का यकीन है, हर मुसलमान का ईमान है, और ये कयामत की निशानियां हमें मालूम होनी चाहिए। खुसूसन जो मैंने पहले अर्ज की, वालिदैन की नाफरमानी है, बेहयाई है, बुराई है, गुनाह है, खुद को इनसे दूर कीजिए। माँ बाप का अदब और एहतराम करने वाला बनिए, गुनाहों से दूर हो जाइए। और समीन मोहतरम, सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बेहतरीन हुक्म इरशाद फरमाया। रब का करम बड़ा है। आप नौजवान हैं, अभी आप जवानी के आगाज में हैं, अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए, गुनाहों से दूर हो जाइए। कुरान कहता है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ये अल्लाह ताला ने बेहतरीन, चूं समझे हमें पैकेज दिया है। रब ने बेहतरीन
हमें आफर अता फरमाई, फरमाए इन तजतनिबु कबाइरा, कि ए कुरान के मुखातबीन, अगर तुम गुनाहे कबीरा से बच जाओ, वो बड़े बड़े गुनाह जिनसे तुम्हें मना किया है, मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो फिर बहैसियत इंसान अगर तुम बड़े गुनाहों से बच गए, कोई छोटे छोटे गुनाह सगीरा हो भी गए, रब फरमाता है नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, फिर हम तुम्हारी सय्यात को मिटा देंगे, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। और सिर्फ गुनाह नहीं मिटेंगे, बल्कि इज्जत वाले घर में हम तुम्हें दाखिल करेंगे, इज्जत वाले घर में दाखिल करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, ये अल्लाह का हमें हुक्म है। और याद रखिए, कुरान की एक आयत अगर हम हर वक्त जहन में रखें, एक आयत मुबारका, जैसे हम अब रोजे की हालत में हैं, आप में से किसी को ठंडा शरबत अभी दिया जाए, कमरे में गिलास रख दिया जाए और आप वहां जाएं, देखें कोई भी नहीं है, कोई बंदा नहीं देख रहा, क्या कोई पिएगा? क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। हमें यकीन है कि हमने एक घूंट भी भर लिया ना, हमारा रोजा जाया, कोई बंदा नहीं देख रहा, मगर रब तो देख रहा है ना। तो जो रब इस वक्त देख रहा है, वो हर वक्त, हर जगह, हर लम्हे हमें देख रहा होता है। तो ये तसव्वुर जिस तरह हम रोजे में है कि मेरा रोजा है और मेरा रब मुझे देख रहा है, रात की तन्हाई हो या दिन की रोशनी हो, उजाला हो, तन्हाई हो, भूख प्यास शिद्दत की लगी हो, फिर भी हम खाने पीने के से अपने आप को दूर रखते हैं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। प्यारे बच्चों, इसी तरह अपने आप को गुनाहों से भी दूर रखें, इस अकीदे के साथ, इस यकीन के साथ, इस सोच के साथ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये अपने सीनों में, अपने जहनों में ये बात बिठा लें। जब भी कोई काम करें तो सोच लिया करें, मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर कुछ मैं गलत करूंगा, मेरा रब मुझे देख रहा है। और कुरान की एक और आयत सुना देता हूं, सूरह निसा की 5वां पारा। इस आयत का शान नुज़ूल तो कुछ खास है, मगर हुक्म के हवाले से फरमाया यस्तख्फून मिनन नास, कि लोगों से डरते हैं, लोगों से हमें हया आती है। वला यस्तख्फून मिनन नास वला यस्तख्फून मिन अल्लाह, अल्लाह से नहीं डरते। आज हम डरते हैं ना, कोई हमारा ऐब, हमारी बुराई, हमारा कोई गलत काम किसी को पता नहीं चले, डरते हैं ना। अगर किसी से गलती हो जाए, कहते यार नहीं, अब्बू को नहीं पता चले, ये फलां बंदे को नहीं पता चले। लेकिन फरमाया वला यस्तख्फून मिन अल्लाह, अल्लाह से नहीं डरते। वहुवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, हर वक्त तुम्हारे साथ है। इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल कौल, रात की तन्हाइयों में जब तुम कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली है, रब जिस बात से राजी नहीं होता, रात की तन्हाई में, जब तन्हाई में तुम कोई ऐसा फेल, कोई ऐसी बात कहते हो, रब उस तन्हाई के आलम में भी तुम्हारे साथ होता है। तो हम लोगों से डरने की बजाय अल्लाह से डरें। ये आयत याद रखें। ये आयत सुनाने का मकसद ये है कि आज आप में से अक्सर नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करते हो। अच्छा इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है, मगर इसका नेगेटिव यूज बहुत ज्यादा है। ये भी कयामत की निशानियों में से है, ये भी कयामत की निशानियों में से है कि आज गुनाह बहुत आसान है, बुराई बहुत आसान हो गई। इसलिए खुद को हर वक्त